Hello, everyone, and welcome to Mentor's Galaxy. This is Pratiksha Roy, your chemistry mentor. We have already started our chapter series in Mentor's Galaxy. और chemistry के लिए I have started some basic concepts in chemistry, जो कि है आपके class 11 का पहला chapter. We have almost completed the discussion of this chapter. We are left with only 2 or 3 more videos. आज है लेक्चर 12 की बारी वेयर वी विल डिस्कस पार्ट्स पर मिलियन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। ये टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर स्कूल्स सिलेबस, बट दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो आई एम डिस्कसिंग देम विथ यू। स्कूल का जो करिकुलम था या फिर एनसीईआरटी के बुक्स में जितना है वो मैंने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया था, दैट इज अप टिल मोलैरिटी एंड मोलालिटी। अब ये टॉपिक लेक्चर 12 एंड लेक्चर 13 के जो टॉपिक्स होंगे दोज आर प्योरली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो दे आर वेरी क्रूशियल। So let us begin today's lecture 12 of parts per million and concept of equivalence. तो पहले आज के contents देख लेते हैं. So we will first discuss some advanced numericals on molarity and molality. मैंने last lecture में बताया था कि I had discussed some simple questions on molarity and molality to clear your concept. I hope that you now understand what molarity and molality mean. So we will advance to some more difficult numericals. Then we will move on to a new topic which is parts per million, which is not there in your NCERT books, but यहाँ से questions आते हैं competitive exams में. So we have to study this. Followed by the concept of gram equivalent and equivalent mass. These two are important for our next lecture, जहां हम पढ़ेंगे normality के बारे में. Before starting or learning about normality, we should know about the concept of equivalence. So today we will discuss that. So let us begin today's lesson. Before we discuss the more difficult numericals, let us revise our important formulas for molarity and molality. ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हम मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और उस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने गिवन मास बाय मोलर मास इनटू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर मिलीलीटर्स में है तो इन 1000। So these two are the most important formulas that you have to use for solving numericals on molarity. एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द टोटल सोल्यूशन। सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं। Now let's come to molality. Similar formula, but it has one major difference. Molality is the number of moles of solute divided by the total mass of the solvent. ये एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है, तो इस चीज को बहुत ही क्लियर रखना है हमको कि मोलैरिटी के लिए हम सॉल्वेंट यूज करेंगे और मोलैरिटी के लिए हम सोल्यूशन का यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फॉर मोलैरिटी एंड मास ऑफ ओनली द सॉल्वेंट फॉर मोलैरिटी, मास होगा केजी में। सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इनटू गिवन मास बाय मोलर मास। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे, इफ A is the solute and B is the solvent, then molality will be WA by MA, which will be the number of moles of solute into WB in kg, which is the mass of the solvent. अगर ये kg की जगह grams में होगा, so it will be multiplied by 1000. So these two are your important formulas for solving numerical molality. तो एक चीज जो हमको बहुत ध्यान में रखना है, केयरफुली करना है कि मोलैरिटी के लिए हम मास ऑफ सॉल्वेंट को कंसिडर करेंगे और मोलैरिटी के लिए हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को कंसिडर करेंगे। सो दीज थिंग्स हैव टू बी वेरी क्लियर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स करेक्टली। So let us see our first numerical for today. Question 1. The density of a 5 molar aqueous solution of NaCl is 1.25 gram per milliliters. Calculate the molality of the solution.
तो सिंपली हम इस क्वेश्चन में किसके साथ डील कर रहे हैं, हमें मोलैरिटी दिया गया है, मोलैरिटी से वी आर फाइंडिंग आउट द मोलालिटी। तो यही है हमारे क्वेश्चन का डिमांड। हर क्वेश्चन क्या डिमांड करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। सो इन दिस क्वेश्चन we can see that we are given the molarity of the solution which is 5 molar and we have to calculate the molality of the solution। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे मोलारिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट करना रहे। तो पहले मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी हैव रिटन इट डाउन। इसको हम नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं विच इज n मोल्स। So I hope this formula is clear. Now we are given that the strength or the concentration of the solution is 5 molar solution of NaCl। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे डिकोड करना है ये भी मैंने डिस्कस किया था लेक्चर 11 में, यू कैन गो चेक इट आउट। सो 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब है 5 मोल NaCl है 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन या फिर 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन बनाया है हमने और उसमें कितने मोल्स NaCl, 5 मोल्स। इसका मतलब है 5 मोलर सोल्यूशन। इस पूरे चीज का स्ट्रेंथ रहता है 5 मोलर। तो इस एक लाइन से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया। तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मोलालिटी के लिए हम डील करते हैं मास के साथ और मोलारिटी में हम डील करते हैं वॉल्यूम के साथ। तो मास और वॉल्यूम को कौन रिलेट करता है, रिलेट करता है हमारा डेंसिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए कि मास और वॉल्यूम को रिलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी यूज डेंसिटी। we know we have studied from a very younger class that density is mass by volume or mass equals to density into volume। Now density is given in the question which is 1.25 gram per milliliter। तो सोल्यूशन का मास निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर सोल्यूशन का मास हमको मिल जाएगा। द डेंसिटी इज गिवन 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम हमने अभी यहाँ पे डिकोड करके निकाला कि 1000 ml हमारा है वॉल्यूम। So the total mass of the solution is 1.25 into 1000 which is 1250 grams of the solution। ये हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन का मास निकाला है। सॉल्वेंट का मास हमको चाहिए होता है मोलालिटी के लिए, लेकिन फिलहाल हमने सोल्यूशन का मास निकाल लिया है किस डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज करके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ NaCl। Na का एटॉमिक मास रहता है 23 और क्लोरीन का रहता है 35.5। सो सिंपली उनको ऐड करने से हमको मोलर मास ऑफ NaCl मिल जाएगा व्हिच इज 58.5 ग्राम पर मोल। ये कैलकुलेट करना बहुत इजी है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं मास के बारे में पढ़ा रही थी। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द सोल्यूट फर्स्ट एंड उससे हम निकालेंगे मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो ये है हमारा थर्ड स्टेप। दिस वाज आवर सेकेंड स्टेप and this was our first step। So in the third step we have to calculate the mass of solute। मास हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास करके, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज द गिवन मास बाय द मोलर मास। तो ये गिवन मास हमको निकालना है, इसलिए वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमने निकाले थे डिकोड करके कि 5 मोल्स है और हमने मोलर मास भी कैलकुलेट करके निकाला था 58.5 ग्राम पर मोल। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द गिवन मास ऑफ द सोल्यूट व्हिच इज NaCl। ये NaCl का मास है व्हिच इज 292.5 ग्राम्स। अब हम जानते हैं कि जो टोटल सोल्यूशन था उसका मास है 1250 ग्राम्स और जो सोल्यूट का मास है वो है 292.5 ग्राम्स। सोल्यूशन से अगर हम सोल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ही हमको सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा एंड दिस विल बी आवर फोर्थ स्टेप। So for the mass of the solvent, we will just subtract the mass of the solute from the total mass of the solution। 1250 minus 292.5 and we will get 957.5 grams जो finally हमको मिल जाएगा mass of the solvent
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग मोलालिटी। मोलालिटी के लिए हमें मास ऑफ द सॉल्वेंट जानना बहुत जरूरी है। इट वॉज नॉट डायरेक्टली गिवन, सो वी डिड 4 स्टेप्स एंड फाइनली वी फाउंड आउट द mass of the solvent. Now we have all our data. We have the number of moles, we have the mass of solvent, and since it is in grams, we have to just multiply by 1000. So molality will be number of moles by the mass of the solvent into 1000. Number of moles is 5. The mass of the solvent is 957.5 grams and into 1000. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो you will get the answer of 5.22 molar. यही है आपका मोलालिटी। So this was a pretty tough question, not tough in the sense if you know how to solve it, it is pretty easy. अगर आपको पता नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो फिर ये टफ लग सकता है। इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स करके ईच स्टेप में बहुत सारे डेटा निकालने होते हैं। बट वंस यू फाइंड आउट ऑल द डेटा यू कैन सिंपली पुट इट इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द मोलालिटी। तो पहला स्टेप है डिकोड करना। डिकोड करके ये निकालना कि कितने मोल्स और कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम और डेंसिटी को यूज करके मास निकालना सोल्यूशन का। फिर वहां से हमने सल्यूट का भी मास निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर सॉल्वेंट का मास निकाला। सो वी डिड 4 स्टेप्स टू फाइंड आउट द मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड देन वी कन्वर्टेड इट मोलालिटी। सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिया जाए जहां पे आपको मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में इंटर कन्वर्शन करना हो, कि मोलालिटी दिया गया है आपको मोलारिटी में करना हो, या फिर इस वाले में जैसे मोलारिटी दिया गया था हमने मोलालिटी में किया, so we have to use one important factor which is density. Why do we have to use density? Because molarity में वॉल्यूम के साथ हम डील करते हैं और मोलालिटी में हम मास के साथ डील करते हैं। तो इन दोनों को कौन रिलेट करता है? इन दोनों को रिलेट करता है हमारा डेंसिटी। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे मोलारिटी और मोलालिटी को आप रिलेट कर पाएंगे बहुत ही इजीली। So this was our first question for today and I hope that you have understood on how to solve such type of questions. Now let's move on to the second question. A solution is prepared by dissolving 20 grams of sodium hydroxide, जो कि है NaOH, in 1000 grams of water. Find the molarity and the molality of the solution if the density is 1.2 gram per milliliters. तो यहाँ पे मोलारिटी भी निकालना है और मोलालिटी भी निकालना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो है कि हमने 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1000 ग्राम पानी में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाया। सो ऑब्वियसली द डेंसिटी इज गिवन, सो यू कैन इजीली कन्वर्ट मोलारिटी into molality or vice versa. So let us see how to solve this kind of problem. So mass of solute is given 20 grams, 20 grams of NaOH. Mass of the solvent जिसको हम लेते हैं WB, it is given 1000 grams. And the molar mass of NaOH, this is the molar mass of NaOH, 40 grams. Basically NaOH, let me just solve it for you. सोडियम का रहता है एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1. So it will be 23 plus 17 which will be 40 grams. So molar mass 40 gram per mole. So for molar mass of NaOH it is 40 gram per mole. So ये हम easily calculate कर सकते हैं और बाकी सारे जो information questions में ही provided थे, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दोनों के लिए मास दिया गया है, तो पहले हम मोलालिटी को आराम से निकाल सकते हैं। मोलालिटी का जो फॉर्मूला है WA/MA, जो कि है सल्यूट का मास, मोलर मास, इनटू द मास ऑफ द सॉल्वेंट, और क्योंकि ये ग्राम्स में है सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000. सो लेट अस पुट द डेटा व्हिच वी ऑलरेडी हैव. सो द गिवन वेट ऑफ द सल्यूट इज 20 ग्राम्स, NaOH का है 20 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल जो कि है इसका मोलर मास, into 1000 gram of water. So this will cancel. Molar or 0.5 molar is molality.
तो ये हम मोलालिटी निकाल लिए विच इज 0.5 मोलर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, स्मॉल m का मतलब मोलालिटी, कैपिटल M का मतलब मोलारिटी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पे अगर आपने कैपिटल M लिख दिया तो इसका पूरा मतलब बदल जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्लीज बी केयरफुल इन दिस very fine steps of units. So since we have found out molality, let us see how to convert molality into molarity. So for molarity, we need the total volume of the solution. Molarity के लिए हमको क्या लगता है? We need the volume of the solution. तो वॉल्यूम हम डेंसिटी से निकाल पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें मास ऑफ द सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट का मास अलग अलग दिया गया था, तो हमको टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन निकालना है। सिंपली हम ऐड कर देंगे सल्यूट के मास को और सॉल्वेंट के मास को, विच इज 20 + 1000 विच इज 1020 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ द टोटल सोल्यूशन। नाउ वी हैव द डेंसिटी गिवन विच इज 1.2। यहाँ पे गिवन है 1.2 डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम विल बी मास बाय डेंसिटी। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। डेंसिटी के फॉर्मूला को हम चेंज करके ही जो हमको निकालना है उसको हम निकाल पाएंगे। जब मास निकालना होता है मास निकालते हैं, जब वॉल्यूम निकालना होता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम विल बी मास बाय डेंसिटी। मास हमने अभी कैलकुलेट किया पूरे सोल्यूशन के लिए 1020 ग्राम्स, और हमको डेंसिटी दिया गया था 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इफ यू सॉल्व दिस वी विल गेट 850 मिलीलीटर, जो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। बाकी जो डेटा है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 20 ग्राम गिवन मास है और हमने मोलर मास कैलकुलेट किया है 40। सो मोलारिटी का जो फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और क्योंकि ये मिलीलीटर्स में है इनटू 1000। जो हमारा गिवन मास था NaOH के लिए 20 ग्राम्स, मोलर मास रहता है इसका 40 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे वॉल्यूम वी हैव कैलकुलेटेड 850 मिलीलीटर्स इनटू 1000। So if you just solve this, you will get 0.59 molar. So this is the molarity. Capital M for molarity. तो हमारे क्वेश्चंस में जो डिमांड्स थे कि मोलारिटी और मोलालिटी को निकालना है वो हमने निकाल लिया। सिंस एवरीथिंग वाज गिवन इन ग्राम्स विच इज मास के यूनिट्स, हमने पहले मोलालिटी निकाला, वहां से हमने कन्वर्ट करके डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम निकाल के हमने मोलारिटी भी निकाल दिया। सो वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस कि जब भी मोलारिटी और मोलालिटी को मिक्स करके आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वहां पे आपको डेंसिटी का यूज करना ही होगा। Change them into each other to interconvert them, you have to use the density factor, convert molarity into molality or molality into molarity. So I hope this question was also interesting, and I hope that you know how to solve these type of questions now. Moving on to our next type of question. Question number 3, a solution of potassium bromide and water, potassium bromide मतलब KBr, and water has a mass by volume percentage of 59.5%. What is the molarity of the solution? अब मोलालिटी और मोलारिटी से निकल के हमने यहाँ पे एक नया ट्विस्ट लाया है, जो कि है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंट से मोलारिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेजेस भी मैंने डिस्कस किया था मोलारिटी और मोलालिटी से पहले। सो नाउ इट इज टाइम टू रिलेट दैट टॉपिक विथ मोलारिटी। तो यहाँ पे दिया गया है सोल्यूशन है एक KBr और पानी का जो है H2O, जिसका मास बाय वॉल्यूम परसेंट है 59.5%। इस 59.5% मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसको पहले हम करेंगे डीकोड। डीकोड कैसे करते हैं वो मैंने कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। 59.5% मास बाय वॉल्यूम का मतलब है देयर इज 59.5 grams of the solute which is KBr solute in 100 ml of the solution. So यहाँ पे कोई भी मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो, अगर x% मास बाय वॉल्यूम रहता है उसका मतलब है x ग्राम ऑफ सल्यूट डिजोल्व है 100 ml ऑफ द सोल्यूशन में। मास बाय वॉल्यूम
इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सल्यूट का जो क्वांटिटी है वो मास की यूनिट्स में है, ग्राम्स में है, और जो सोल्यूशन है टोटल उसका यूनिट है वॉल्यूम में, जो कि है मिलीलीटर। तो यहाँ से हमको गिवन मास जो है सल्यूट का वो पता चल गया है, 59.5 ग्राम सल्यूट यूज हुआ है इस पूरे सोल्यूशन में, और टोटल जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो है 100 मिलीलीटर्स। So WA जो कि है mass of the given mass of the solute, it is 59.5 grams. Volume of the solution, बहुत केयरफुल रहना है कि मोलैरिटी निकाल रहे हैं या मोलालिटी निकाल रहा है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है या सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ये चीजें बहुत केयरफुली करना होगा। यहाँ पे वॉल्यूम सोल्यूशन का ही है, सो द सोल्यूशन वॉल्यूम इज 100 ml और मोलर मास ऑफ KBr इज 119 ग्राम पर मोल। इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, KBr। ये डेटा अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जो एटॉमिक मासेस है वो नहीं दिए जाते क्वेश्चन पेपर में, आपको याद रखना होता है। बट फॉर KBr इट इज नॉट अ वेरी कॉमन एटॉमिक मास। आई होप इट्स मास विल बी गिवन इन द एग्जाम। पोटेशियम का रहता है 39 और ब्रोमीन के लिए रहता है 80। So if we just add them, because we have one potassium and one bromine, it will come to be 119 gram per mole, जो कि है इसका मोलर मास। Now we have all our data to calculate molarity. So let us just put all the data in the formula of molarity, which is the given mass of the solute by molar mass into the volume of the solution. Since the volume is in milliliters, we will just multiply by 1000. So 59.5 divided by 109 into 100 whole multiplied by 1000. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get the answer of 5 molar. कैपिटल M मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमने निकाल लिया। इस बार हमने मोलैरिटी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से निकाला है, नॉट फ्रॉम मोलैलिटी। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट द मोर यू प्रैक्टिस एंड द मोर यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इट विल बिकम वेरी इजी। बट ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे। सो इफ यू कैन सॉल्व इट करेक्टली देन यू विल गेट फुल मार्क्स। So try to understand it clearly, and I hope that these questions are more interesting than the simple ones. This is one more type of question. So let us see question number 4. The molality of a solution of ethanol and water. Ethanol मतलब C2H5OH. Ethanol and water H2O is 4 molar. What are the mole fractions of ethanol and water? तो यहाँ पे फिर से हम एक नया कुछ लेकर आए जो कि है मोल फ्रैक्शन, जिसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी से हमें मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं सोल्यूशन के कंपोनेंट्स का, जो कि है इथेनॉल एंड वाटर। सो नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहले करेंगे हम डिकोड। 4 मोलर का मतलब क्या है ये हम डिकोड करेंगे। फिर से 4 molar solution of ethanol and water means it has 4 moles of ethanol in 1000 grams of water. ये हो गया आपका सल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। 4 मोलर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर का मतलब है 4 मोल्स है सल्यूट के, यहाँ पे सल्यूट है हमारा इथेनॉल, इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट जो कि है हमारा यहाँ पे वाटर। सो मोलालिटी कैसे डिकोड करता है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पे हमें पता है कि इथेनॉल के है 4 मोल्स और वाटर का हमको मास जो है वो मिल गया है 1000 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि हमें मोल्स का एक फ्रैक्शन निकालना होता है, इंडिविजुअल मोल बाय द टोटल मोल। सिंस वी ऑलरेडी नो अबाउट द मोल्स ऑफ इथेनॉल, वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। किसका मोल हम नहीं जानते, वो है वाटर का, जिसका मोल्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अभी तक आई होप यू ऑलरेडी नो, आई डोंट थिंक देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दैट द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल।
So if you do not know how to calculate the molar mass of H2O, then I think you should go back and look at the previous lessons. तो H2O का मोलर मास आपको आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ. So the given mass is 1000 grams and the molar mass is 18. So we will just do 1000 by 18 to find out the number of moles, जो कि हमको मिलेगा 55.55 moles of water. इथेनॉल का मोल्स हम ऑलरेडी जानते हैं 4 मोल्स, और वाटर का मोल भी हमको मिल चुका है. So now we can easily find out the mole fraction. Mole fraction of ethanol will be the number of moles of ethanol by the total number of moles. इथेनॉल का मोल हम जानते हैं 4 मोल्स, और टोटल मोल्स होंगे 4 प्लस 55.55. टोटल मोल्स दो कंपोनेंट था, दो कंपोनेंट से ये सोल्यूशन हमने बनाया था, जो कि है इथेनॉल एंड वाटर. So ethanol's mole and water's mole we will just add to get the total moles. This is the total mole. So if you solve this, you will get the answer of the mole fraction of ethanol as 0.067. ये एक फ्रैक्शन है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है. यहाँ पे भी मोल रहेगा यूनिट, नीचे भी मोल रहेगा यूनिट. द यूनिट्स विल कैंसिल एंड यू विल जस्ट गेट द आंसर ऑफ 0.067. मोल फ्रैक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं होता. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने के लिए. मोल फ्रैक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम क्वांटिटी है, इसलिए वो उनका यूनिट कैंसिल होके यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहता. एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, वी ऑलरेडी नो दैट XA plus XB equal to 1. So this is the mole fraction of water, sorry, not ethanol. Mole fraction of water XB is 1 minus XA, which is equal to 1 minus 0.067, which will come out to be 0.933, जो कि हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और द सॉल्वेंट. इसको हम डिफरेंट वे में भी निकाल सकते थे, XB बाई XA प्लस XB करके, बट 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकालना इज इजियर, सो आई एम फॉलोइंग दिस मेथड. So we have finally found out the mole fraction of both ethanol and water. ये 4 मोलर से हमने डिकोड करके इथेनॉल का मोल हमने निकाल लिया. वाटर का जो मास मिला उसको यूज करके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, क्योंकि मोलर मास हम ऑलरेडी जानते हैं. अब जब दोनों के मोल्स निकल गए तो हमने मोल फ्रैक्शन भी बहुत आसानी से हमने निकाल लिया. So this is another type of question where you had to convert molality into mole fraction. तो अभी हमने 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए. पहले हमने मोलैरिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट किया, फिर कुछ डेटा था वहां से हमने मोलैरिटी और मोलालिटी दोनों निकाले. उसके बाद हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से मोलैरिटी निकाला, एंड फाइनली मोलालिटी से हमने मोल फ्रैक्शंस निकाले. These were a variety of numericals, एंड इसी को चेंज करके, इसी को थोड़ा ट्विस्ट करके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. I will solve more such numericals with you in the upcoming lectures. These are some homework questions for you to try. Interesting सारे questions है. Question number 5, 6 and 7. इनको आप स्टडी कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. Let me know in the comment section, and if you have any doubts, we will again solve this in our upcoming lessons. So these are your homework questions. So now we have completed our numerical discussion on molarity and molality. So we will move on to the new topic for today, which is parts per million. तो यहाँ तक जो एनसीईआरटी का सफर था वो खत्म हो रहा है. जो एनसीईआरटी का जो जर्नी था यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं. इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, बट दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कुछ क्वेश्चंस उन टॉपिक से कई बार आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दोज क्वेश्चंस. दैट इज व्हाई आई विल बी डिस्कसिंग. लेकिन जो लोग सिर्फ फिलहाल स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल की स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए इतना तक ही सफिशियंट है. मैंने पूरा एनसीईआरटी जो भी था टॉपिक वाइज मैंने सब कुछ इलेबोरेट करके डिस्कस किया है. सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी विच एंड्स ओवर हियर. इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन करके, ये टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. सो लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन. सो व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म.
दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। जैसे कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेजेस हमने पढ़ा, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, वो जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, पार्ट्स पर मिलियन भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म का ही टाइप है, इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सो लेट अस सी व्हाट इट मींस। पार्ट्स per million denoted as ppm, it is used to express the concentration of very small quantities of a substance within a larger mixture। ppm हम क्यों यूज करते हैं? ये एक टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब एक बहुत ज्यादा एक सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर एक सोल्यूशन है, लेकिन उसमें सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। मतलब एक मिलियन में कितना पार्ट प्रेजेंट है। सो इट इज यूज टू डिनोट वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्वांटिटीज। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सल्यूट that is present in every 1 million parts of the solution। तो ऑब्वियसली पार्ट्स पर मिलियन नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि कितने पार्ट्स सल्यूट प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में। 1 million मीन्स 10 lakhs, 6 zeros, so 1 million बेसिकली मीन्स 10 lakhs। ये मैंने इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास पुट किए हैं। सो इफ यू जस्ट पुट इट लाइक दिस इज 1 million, 6 zeros, या फिर 10⁻6 को ही हम कहते हैं 1 million। 10⁻6 पार्ट में कितना पार्ट सल्यूट प्रेजेंट है, वही है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। सो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हम 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं या फिर 10⁻2 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, लेकिन उसके जगह पे पार्ट्स पर मिलियन में हम 10⁻6 या फिर 1 million के रेस्पेक्ट में कितना पार्ट सल्यूट प्रेजेंट है, हम वो निकालते हैं। This unit of concentration is useful when the solution is extremely dilute। अब डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब है लेस सोल्यूट, मोर सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट बहुत ज्यादा कम होगा, वैसे टाइप के जो सोल्यूशन बनते हैं, उनके लिए ये पार्ट्स पर मिलियन का यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ ट्रेस गैसेस इन द एटमोस्फियर इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। हम जानते हैं हमारा एटमॉस्फेयर जो है मेनली दो गैसेस से बना है, मेजॉरिटी जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन उसके अलावा और कितने सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, और भी बहुत सारे जो भी गैसेस है, हाइड्रोजन। तो ये गैसेस बहुत बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे कम अमाउंट को डिनोट करने के लिए या समझाने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि 1 मिलियन पार्ट सोल्यूशन में कितना पार्ट सोल्यूट प्रेजेंट है, वही डिनोट करता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। सपोज वी हैव अ सोल्यूशन whose concentration is denoted as 5 parts per million और 5 ppm। पार्ट्स पर मिलियन को कहेंगे हम ppm, ppm। सो वी हैव अ सोल्यूशन जहां पे हमको बताया जा रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है 5 ppm। इसका क्या मतलब है? दिस इंडिकेट्स दैट 5 ग्राम ऑफ द सल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 1 मिलियन ग्राम कितना होगा, लेकिन उसमें अगर हम सिर्फ 5 ग्राम सल्यूट डालेंगे तो ही इसका कॉन्सेंट्रेशन हम बता पाएंगे कि इट इज 5 ppm। तो 5 ppm का मतलब है 5 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन का जो मास है वो है 1 मिलियन। इतना ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 1 मिलियन ग्राम एक्चुअली में कितना होगा, लेकिन उसमें जो सल्यूट का प्रेजेंट है वो सिर्फ 5 ग्राम है, इसलिए इट इज 5 ppm। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सल्यूट है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। ऐसे ही बहुत कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करने के लिए ppm का यूज किया जाता है। Thus, for 1000 ग्राम of the solution, the amount of solute present will be 0.005 ग्राम।
फिर 1000 ग्राम मतलब कितना होता है हमारा 1 kg। अगर 1 मिलियन ग्राम में सिर्फ हमारा 5 ग्राम है तो 1 kg सोल्यूशन में हमारा होना चाहिए 0.005 ग्राम, विच इज 5/1000। अब इसको सिंपली कैंसिल करके यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 5/1000। मतलब 1 kg सोल्यूशन में सिर्फ 0.005 ग्राम्स प्रेजेंट है। मतलब 1000 ग्राम से अगर हम 5 पार्ट निकाल ले तो जितना प्रेजेंट रहेगा उतना। ये इतना स्मॉल क्वांटिटी है कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो वी एक्सप्रेस इट एज पार्ट्स पर मिलियन। दस टू एक्सप्रेस एनी ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस मतलब बहुत कम क्वांटिटी में जब प्रेजेंट रहता है सिर्फ उसका ट्रेस रहता है, मतलब वो क्वांटिटी का जैसे टच रहता है, जो ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट रहता है, सो पीपीएम इज कॉमनली यूज्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स पर मिलियन। इसका यूज इसलिए होता है जब कोई क्वांटिटी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, उसको हम डिनोट करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं हम। अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, जो भी सल्यूट रहेगा ग्राम में। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, फिर से यहाँ पे मोलैरिटी की तरह हम सोल्यूशन का यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूशन का। प्लीज टेक नोट कि यहाँ पे सोल्यूशन का अमाउंट इनटू 10⁻²। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इसी को हम 10⁻² करते हैं फॉर परसेंटेज, लेकिन अब हम निकाल रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, so it will be 10⁻⁶, the amount of solute in grams divided by amount of solution in grams into 10⁻⁶. If the amount of solute A is WA, A यहाँ पे small subscript में रहेगा। If the solute amount of a solute of A is WA and the amount of the solution is W, it will be WA by W into 10⁻⁶। परसेंटेज की तरह सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ परसेंटेज में 100 यूज करते थे, यहाँ पे हम 1 मिलियन का यूज कर रहे हैं, विच इज 10⁻⁶। वेरी सिंपल फॉर्मूला। एंड यहाँ से अगर न्यूमेरिकल्स आते भी है तो बहुत इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सम ऑफ विच आई विल डिस्कस नाउ। So this is the formula. ppm will be the amount of solute in grams divided by the amount of solution in grams into 10⁻। कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। Find the concentration of a solution in ppm if 6 into 10 to the power 5 grams of NaCl is dissolved in 200 grams of the solution। तो ये हो गया हमारा WA, ये हो गया हमारा W। तो फॉर्मूला हम जानते हैं WA by W into 10⁻⁶। फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, WA हम जानते हैं 6 into 10⁻⁻5, किसके लिए, ये है सल्यूट के लिए और ये है सोल्यूशन के लिए 200 ग्राम्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे 0.3 ppm। 1 मिलियन में 0.3 ग्राम्स आपका NaCl प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.3 ग्राम्स NaCl in 10⁻⁶ grams of solution। 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में आपका NaCl कितना प्रेजेंट है, सिर्फ 0.3 ग्राम्स भी नहीं, सिर्फ 0.3 ग्राम्स ऑफ NaCl। आई होप यू कैन कैलकुलेट दिस। इसका कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 10⁻⁶ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻⁴ इंटू 10⁻²। तो ये दो जीरोस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा हमारा। सो इट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻1। 3 इंटू 10⁻⁻1 का मतलब है 3/10 विच इज 0.3 ppm। सो सिर्फ 0.3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में। बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन जब हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर भी वी कैन अंडरस्टैंड। इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखना चाहे तो हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा छोटा क्वांटिटी लगेगा, इसलिए हम इसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। Question number 2. What is the amount of solute dissolved in 500 gram of the solution if the concentration is 2 ppm?
सेम क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ हमको अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना डिसॉल्व है वो निकालना है, पीपीएम हमको दिया गया है। सेम फॉर्मूला, सो डब्ल्यू और पीपीएम, तो डब्ल्यू ए हमको यहाँ पे निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू इंटू 10⁶। तो हमको यहाँ पे निकालना है डब्ल्यू ए। So the amount of solute in grams, which is basically WA, will be ppm into the amount of solution, which is W, divided by 10⁶। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे ppm कितना था, 2 ppm, और हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन था 500 grams, divided by 10⁶। So it will be how much? Let us calculate it. दो जीरोस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। So it will be how much? This will be 5000. It will be 1000. So 1/1000 होगा ग्राम्स, जो कि है 1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, और यू कैन राइट इट एज 0.001 ग्राम्स। सो दिस इज द आंसर। इसका मतलब क्या है कि 0.001 ग्राम प्रेजेंट थे 500 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में। तो यही है आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल था, एक ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसको हम यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ सल्यूट निकाला, क्योंकि यहाँ पे पीपीएम हमको दिया गया। Let's see another type of question, which is also very easy. Find the concentration of a solution of methanol, CH3OH, in water in ppm, मतलब हमको ppm ही निकालना है। If the solution contains 50 milligrams of methanol dissolved in 750 milliliters of the solution। एक बहुत ही छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है वो मास में नहीं दिया गया है, वो वॉल्यूम में दिया गया है। तो अब हम जानते हैं लेकिन कि अगर हमको मास और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन बनाना है, तो हमको यहाँ पे डेंसिटी का यूज करना होगा। वो कैसे करते हैं, लेट अस क्विकली सी। पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वाटर है एज द सॉल्वेंट, मेन सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन का वो है वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वाटर का डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दिया गया है, डेंसिटी हम जानते हैं, तो मास विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 750 ml into 1 gram per milliliter will be 750 grams. So now we have the amount of the solution in grams. डेंसिटी वाटर का पता होना आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि इट इज ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर मिलीलीटर। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोलारिटी मोलालिटी के न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, कि अगर हमको वॉल्यूम या फिर मास दिया गया है, उनको इंटर कन्वर्ट करने के लिए हमको डेंसिटी को यूज करना है। सो वी हैव फाउंड आउट 750 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन। सल्यूट हम जानते थे 50 मिलीग्राम्स। 50 milligram is basically 50/1000 grams। तो उसको हम यहाँ पे पुट कर दिए, 50 इंटू 10⁻³ फॉर द सल्यूट। ये है सल्यूट के लिए, ये निकाल लिया हमने सोल्यूशन के लिए, ये निकाल लिया हमने सोल्यूशन के लिए, and we will just solve this and we will get our final answer as 66.67 ppm। तो ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है वो ग्राम्स में नहीं दिया गया था, मास के यूनिट्स में नहीं दिया गया था, वो वॉल्यूम के यूनिट्स में दिया गया था। पहले हमने डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट किया, एंड सिंपली हमने यूनिट्स को सेम करके वी जस्ट कैलकुलेटेड एंड फाउंड आवर आंसर इन ppm। ऐसे टाइप ऑफ इजी क्वेश्चंस ही आपको दिए जाएंगे, मैक्सिमम आपके ऐसे यूनिट्स चेंज किए जाएंगे, मास की जगह वॉल्यूम को यूज किया जाएगा, सिंपली डेंसिटी को यूज करके फिर से उसको मास में कन्वर्ट करके आप पार्ट्स पर मिलियन में निकाल सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम यूज करते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, बहुत
कम क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। The last topic for today, the concept of gram equivalent. हम एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसका नाम रहेगा नॉर्मेलिटी। लेकिन उसको समझने के लिए ये ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कहता है या इसका क्या मतलब है। So this we will discuss in today's lecture and normality we will discuss in the next lecture. So the concept of gram equivalent में पहला आता है हमारा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब है? मैंने मास जब मैं डिस्कस कर रही थी एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, बहुत सारे मास के टाइप्स मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन ये इक्विवेलेंट मास मैंने कभी डिस्कस नहीं किया था। तो ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? Equivalent mass is the mass of a substance that reacts or replaces a fixed amount of another substance. किसी दूसरे रेफरेंस सब्सटेंस का एक फिक्स्ड अमाउंट जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है या फिर उसको रिप्लेस करता है, उस सब्सटेंस के जो मास है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। मतलब 1 ग्राम अगर किसी रेफरेंस सब्जेक्ट को अगर वो रिएक्ट करता है या फिर रिप्लेस करता है तो ये हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट मास। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट है ये किसका अमाउंट है या फिर वो सब्सटेंसेस कौन है? द फिक्स्ड अमाउंट्स आर टिपिकली कंसिडर्ड टू बी 1.0078 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। इनको जो भी जिस किसी और एलिमेंट का या फिर किसी और कंपाउंड का कोई भी मास अगर इनको रिप्लेस कर पाया, रिएक्ट्स और रिप्लेस, उस मास को ही हम कहेंगे उस कंपाउंड या फिर उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। जैसे कि अगर NaCl ने x ग्राम ऑफ NaCl ने अगर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को किसी भी रिएक्शन में रिप्लेस कर दिया, तो ये 1 ग्राम ही हो जाएगा NaCl का इक्विवेलेंट मास। इसका एक और डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मास का। It can also be defined as the amount of substance deposited at the cathode during electrolysis when a charge of 1 mole of electrons is passed through it. तो इसका एक दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द कैथोड जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हम पास करते हैं। क्लास 12 के करिकुलम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है जहां हम ये सारे इलेक्ट्रोज, इलेक्ट्रोलिसिस इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ यहाँ पे एक एनोड रहता है और यहाँ पे एक कैथोड रहता है। ये एनोड, ये है कैथोड। तो इनको हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी के साथ और ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो क्लास 10 में वी हैड डिस्कस्ड वेरी, बहुत कम डिस्कशन हुआ था, लेकिन हमें इतना पता है कि एनोड से कैथोड में मेटल डिपॉजिट होते हैं। M+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके कैथोड में ऐसे डिपॉजिट होते हैं। लेट मी यूज अनदर कलर। कैथोड में ऐसे डिपॉजिट होते रहते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके M+ सोल्यूशन में रिलीज होता रहता है और यही M+ यहाँ पे ट्रेवल करके इलेक्ट्रॉन्स लेके कैथोड में डिपॉजिट होते हैं। दिस इज द मेथड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो कि हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन क्लास 12 करिकुलम। तो जब ये जो हमारा यहाँ पे करंट पास हो रहा है, दिस इज करंट और चार्ज, सो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा तब जो मास डिपॉजिट होगा कैथोड में उसी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट मास। ये एक दूसरा डेफिनेशन है।
जब हम स्पेसिफिक एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है उसको अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करने के कारण जितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड में, उस एलिमेंट के लिए या फिर उस कंपाउंड के लिए वही रहेगा उसका इक्विवेलेंट। सो दिस इज अनदर टॉपिक फॉर अनदर चैप्टर ऑल टुगेदर, अनदर क्लास। ये क्लास 11 के करिकुलम में है भी नहीं, बट आप इतना याद रख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन वाइज जब आप एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोवाइड करेंगे तब जितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड में उस एलिमेंट या फिर उस कंपाउंड के लिए वही रहेगा उसका इक्विवेलेंट मास। So there is a formula for calculating equivalent mass for any compound or any element. So let us discuss that. Equivalent mass है molecular mass divided by n factor. बहुत अच्छी बात है। molecular mass क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, हमने कैलकुलेट भी किया कि हम molecular mass कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये n फैक्टर क्या है? ये जो n फैक्टर है ये डिपेंड करता है फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के लिए n फैक्टर का वैल्यू जो है डिफरेंट रहेगा। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। पहला है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। मॉलिक्यूलर मास, जो भी एसिड आप यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो है ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट फैक्टर। कांस्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो, चाहे वो कंपाउंड हो, मतलब कंपाउंड में एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, या फिर कोई एलिमेंट हो, उसका जो मास रहेगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, वही रहेगा। एसिड्स के लिए एन फैक्टर हो जाएगा उसका बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन्स, ओ एच एच प्लस। जैसे HCl के लिए एक H प्लस रिप्लेसेबल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए दो हाइड्रोजन है यहाँ पे रिप्लेसेबल। जितने ऐसे हाइड्रोजन रहेंगे एसिड में रिप्लेसेबल, वही को हम कहेंगे बेसिसिटी, और वही होगा यहाँ पे एन फैक्टर। सिमिलरली बेस के लिए मॉलिक्यूलर मास फिर से यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट, और जो रहेगा हमारा एन फैक्टर वो हो जाएगा हमारा एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस। NaOH के लिए जैसे 1 OH माइनस, CaOH होल 2 के लिए जैसे 2 OH माइनस। सो लाइक दिस, बेस में जितने सारे रिप्लेसेबल आपके हाइड्रोक्सिल आयंस रहेंगे वही हो जाएगा आपका एन फैक्टर फॉर बेसिस, और एसिड्स में जितने आपके रिप्लेसेबल H प्लस रहेंगे वही हो जाएगा आपका एन फैक्टर फॉर एसिड्स। एसिड्स और बेस के अलावा रहता है आपका सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट जैसे NaCl, KBr, MgCl2। एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके जो बनता है वही है सॉल्ट, हम जानते हैं MgCl2। तो ऐसे सॉल्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम निकालेंगे। एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन द कैटायन। पॉजिटिव आयन रहेगा Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, ये सारे कैटायन है। कैटायन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कहते हैं कैटायंस। कैटायन का जो चार्ज रहेगा सॉल्ट में, जो एक कैटायनिक पार्ट रहेगा, एक एनायनिक पार्ट रहेगा, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट की तरफ हमको ध्यान नहीं देना है, जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा, जो कैटायनिक पार्ट रहेगा, उनके ऊपर जो टोटल चार्ज रहेगा वही हो जाएगा सॉल्ट का एन फैक्टर। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। फिर से जो भी एजेंट रहेगा, जो भी कंपाउंड रहेगा, उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना चेंज हो रहा है वही हो जाएगा आपका एन फैक्टर, एंड दिस विल वेरी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। एसिडिक कंडीशन में एक रिएक्शन होगा, बेसिक कंडीशन में दूसरा रिएक्शन होगा। रिएक्शन सेम होगा लेकिन जो कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज हो रहा है वो अलग अलग रहेगा। जिस रिएक्शन के लिए आपको निकालने के लिए बोला जाएगा इक्विवेलेंट मास, उस रिएक्शन में कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का,
मॉलिक्यूल में आप वो देखिए, एंड वही हो जाएगा आपका एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लास्ट में रहता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, उनका एटॉमिक मास जो आपको इजीली पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, हर एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास। और एन फैक्टर हो जाएगा उसका वैलेंसी, उस एलिमेंट का जो वैलेंसी रहता है। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1 रहता है, मैग्नीशियम का 2 रहता है, वैसे जो वैलेंसी रहेगा वही हो जाएगा आपका यहाँ पे एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। एसिड्स के लिए उसका बेसिसिटी, बेसिस के लिए उसकी एसिडिटी, सॉल्ट्स के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, और एलिमेंट्स के लिए उसकी वैलेंसी होगी हमारी एन फैक्टर। ये एन फैक्टर डिपेंड करेगा कंपाउंड पे, तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कंपाउंड आप निकाल रहे हो, कौन से कंपाउंड के लिए आप निकाल रहे हो एन फैक्टर, और फिर आप इक्विवेलेंट मास निकालिएगा। सो दिस इज द concept of equivalent mass and how to calculate it from molecular mass. अब आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स में। जैसे मोल्स हमने स्टडी किया था, नंबर ऑफ मोल्स एक क्वांटिटी को दर्शाता है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स भी एक क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी भी एक सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिनोट करता है। जैसे मोल्स हम यूज करते थे किसी एक चीज के, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल्स, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी क्वांटिटी को दर्शाता है, और इसका फॉर्मूला रहता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मोल्स के लिए जैसे था, इसको आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। मोल्स के लिए था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए है गिवन मास बाय द इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास हम अभी अभी स्टडी करके आए हैं, इक्विवेलेंट मास हम अभी अभी स्टडी करके आए हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर मास बाय द एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट रहेगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इक्विवेलेंट मास है मॉलिक्यूलर मास बाय द एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लिख पाए यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास को सिंपली हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऑब्वियसली डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया। So number of gram equivalent is given mass by equivalent mass. इक्विवेलेंट मास को हमने लिखा है मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। अब ये जो है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम इसलिए फाइनली लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर उसका नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और आपको अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, सिंपली आप देखिए, चेक कीजिए कि उसका एन फैक्टर क्या होगा। अगर एसिड रहेगा, बेस रहेगा, सॉल्ट रहेगा, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा। सिंपली उस एन फैक्टर को नंबर ऑफ मोल्स दिए गए नंबर ऑफ मोल्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, very important, which is the relation between gram equivalent and number of moles। मोल्स को अगर आप एन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ग्राम इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास का अगर हम ब्रेक करके फॉर्मूला पुट करेंगे तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो अब हम बहुत ही इजीली कुछ कैलकुलेशंस कर सकेंगे इनका। अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो H2SO4 is an example of an acid।
तो इसके लिए n फैक्टर क्या होगा उसका, बेसिसिटी या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, जो कि है यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स है, सो इट इज 2। तो मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो एटॉमिक मासेस है वो गिवन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और यहाँ पे है 4 ऑक्सीजन। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, 2 + 32 + 64 आएगा हमारा 98 ग्राम, 98 ग्राम। सो नाउ फिर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, 98/2 विच इज 49, 49 ग्राम्स ही हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। तो बहुत ही इजी है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक एसिड है, बहुत फेमस एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिसिटी जो कि है एन फैक्टर निकाल लिया हमने यहाँ पे 2, और सिंपली हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया और उसको 2 से डिवाइड करके हमको इक्विवेलेंट मास भी मिल गया। तो HCl भी हम जानते हैं ये एक एसिड है। अब इसका बेसिसिटी कितना है और एन फैक्टर ऑब्वियसली इक्वल टू बेसिसिटी कितना रहेगा, आप कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना रहेगा, इक्विवेलेंट मास कितना रहेगा। NaOH एक और एग्जांपल, लेकिन ये है एक बेस। इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसकी एसिडिटी या फिर नंबर ऑफ OH माइनस, यहाँ पे कितने हैं, एक ही है। तो एक बार फिर से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे NaOH के लिए। एक सोडियम है 23, एक ऑक्सीजन है 16 और एक है हमारा हाइड्रोजन 1। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे यहाँ पे 40 ग्राम्स। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा हमारा 40 और एन फैक्टर था हमारा यहाँ पे 1। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है विच इज 40 ग्राम्स। सो दिस इज सेम। तो ये भी एक बेस है, तो इसकी क्या एसिडिटी रहेगी, मतलब एन फैक्टर कितनी रहेगी और इक्विवेलेंट मास कितना रहेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। So these two are for your homework. एसिड्स और बेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया, तो एक बार सॉल्ट के लिए ही देख लेते हैं। NaCl हम जानते हैं ये एक सॉल्ट है। NaOH + HCl को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये सॉल्ट बनता है। अब हमको यहाँ पे एन फैक्टर क्या देखना चाहिए, एन फैक्टर होगा चार्ज ऑन कैटायन, जो कि है यहाँ पे हमारा सोडियम Na+ रहता है, जो कि हो जाएगा हमारा 1। तो एन फैक्टर इस केस में हो जाएगा 1 का मॉलिक्यूलर मास 23 + 35.5 which is 58.5 grams। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 1 which is 58.5 grams। तो यहाँ पे चार्ज कैटायन का 1 था, इसलिए एन फैक्टर 1 है और इसलिए मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास भी इसका सेम है। MgCl2 भी एक सॉल्ट है, तो इसके लिए भी आप कैलकुलेट कीजिए, अनदर फॉर योर होमवर्क। नाउ लास्ट वन फॉर टुडे, KMnO4। अब ये क्या है, इज इट अ सॉल्ट और इज इट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड? You can try to solve it on your own, but this is a mystery question which I will discuss in the next lecture. This I will discuss in the next lecture, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट मास हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है। अब कौन सा डेटा मिसिंग है और हम क्यों नहीं निकाल सकते, जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है ये क्यों हो रहा है, दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके अलावा आपको सॉल्ट्स के लिए, एसिड के लिए, बेसिस के लिए अब आप आराम से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उनका एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो आज हमने बहुत नई चीजें डिस्कस की जो आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
Thank you so much for being a part of today's lesson. I hope it was interesting and informative. We solved very tough numericals today and we discussed new topics. So I hope you have understood everything. And if you have any doubts, you can always let me know in the comment section. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy, where you will get regular classes and interesting contents and preparation tips on shorts and reels. And definitely, we will have separate question solving sessions and your doubt clearing sessions as well. Please subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page. Thank you for being a part of Mentors Galaxy. If you have not subscribed already, please subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more updates. Thank you so much.